Good morning, students. Welcome to the history class. Continuing the chapter Confrontation of Cultures. Today, we will discuss about voyages of exploration by Europeans and Atlantic crossing. First of all, we will discuss voyages of exploration by Europeans. The people of South America and Caribbean got to know of the existence of European people when the latter began to sail across the Atlantic Sea. The magnetic compass, which helped identify the cardinal points accurately, had been known since 1380, but only in the 15th century did people use it when they ventured on voyages into unknown areas. By this time, many improvements had been made in European sailing ships. Larger ships were built that could carry a huge quantity of cargo as well as equipment to defend themselves if attacked by enemy ships. The circulation of travel literature and books on cosmography and geography created widespread interest right through the 15th century. साउथ अमेरिकन और कैरिबियन लोगों को यूरोपवासियों के अस्तित्व का पता तभी चला जब यूरोपवासी अटलांटिक सागर के जहाज़ों द्वारा पार करके वहां पहुंचे। सन 1380 में मैग्नेटिक कंपास का आविष्कार हो चुका था, जिससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं का सही जानकारी लेने में सहायता मिल सकती थी। लेकिन इसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में ही जाकर हो पाया, जब लोगों ने अनजान मुल्कों की ओर समुद्री यात्राएं की। इस समय तक समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाज़ों में काफ़ी सुधार हो चुका था। बहुत बड़े जहाज़ों का निर्माण होने लगा था जो विशाल मात्रा में माल की ढुलाई करते थे, साथ ही आत्मरक्षा के अस्त्र शस्त्रों से भी लैस होते थे ताकि शत्रुओं के आक्रमण का मुकाबला किया जा सके। पूरी 15th सेंचुरी के दौरान ट्रैवल अकाउंट्स, कॉस्मोग्राफी और ज्योग्राफी की बुक्स के प्रसार ने लोगों में व्यापक रुचि पैदा की। In 1477, Ptolemy's geography became available in print and thus came to be widely read. According to Ptolemy, an Egyptian, the regions of the world were arranged in terms of latitude and longitudes. Reading these texts gave Europeans some knowledge of the world, which they understood to have three continents, namely Europe, Asia, and Africa. Ptolemy had suggested that world was spherical, but he underestimated the width of the oceans. Europeans had no idea of the distance they would have to travel in the Atlantic before they reached land. Since they imagined it would be short voyage, there were many who were ready to venture forth recklessly beyond the known seas. 1477 में टॉलमी की ज्योग्राफी नाम की पुस्तक प्रिंट हुई और इसलिए लोगों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ी गई। इजिप्शियंस टॉलमी के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रूप में अरेंज किया गया था। इन एक्सप्लेनेशंस को पढ़ने से यूरोपवासियों को दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली, जिसे उन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बटा हुआ समझा। टॉलमी ने बताया था कि दुनिया स्फेरिकल है, लेकिन उसने ओशंस की चौड़ाई को काफ़ी कम आंका था। यूरोपवासियों को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि अटलांटिक के दूसरी ओर भूमि पर पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी तय करनी होगी, क्योंकि वे सोचते थे कि ये दूरी बहुत कम होगी। इसलिए उनमें से कई बिना सोचे समझे समुद्रों में उतरने के लिए सदा उतारू रहते थे।
People from Iberian Peninsula, the Portuguese and the Spanish were the pioneers in the 15th century voyages of exploration. For a long time, these were called voyages of discovery. Later historians, however, argued that these were not the first voyages that people of the Old World made to lands unknown to them. Arabs, Chinese, and Indians had navigated vast stretches of ocean, and sailors from the Pacific Islands had made major ocean crossings. The Vikings of Norway had reached North America in the 11th century. 15th century में एब्रेयन पेनिनसुला यानी स्पेन और पुर्तगाल के लोग इन खोज यात्राओं में सबसे आगे रहे। पहले इतिहासकार इन समुद्री यात्राओं को खोज यात्रा कहा करते थे, परंतु बाद में उन्होंने ऐसा कहना छोड़ दिया। बाद के हिस्टोरियंस ने ये कहा कि अनजान इलाकों की और ओल्ड वर्ल्ड के लोगों की ये पहली समुद्र यात्राएं नहीं थी। पहले भी अरब, चीनी और भारतीय यात्री और प्रशांत द्वीप समूहों के नाविक अपनी समुद्री जलयानों में बैठकर बड़े बड़े महासागरों के आर पार जा चुके थे। नॉर्वे के वाइकिंग्स 11वीं सेंचुरी में नॉर्थ अमेरिका पहुंच चुके थे। Why were Spanish and Portuguese rulers in particular so receptive to the idea of funding a maritime quest? What produced such a passion for gold and treasure and for glory and titles? One may find the answer in a combination of three motives: economic, religious and political. स्पेन और पुर्तगाल के शासक ही विशेष रूप से समुद्री खोज के लिए धन देने को इतने उतावले क्यों थे? उनके सिर पर सोने तथा धन दौलत के भंडारों और यश एवं सम्मान प्राप्ति की धुन इतनी सवार क्यों थी? दरअसल वे इकोनॉमिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल तीन प्रकार के मिले जुले कारणों से इस कार्य के लिए प्रेरित हुए। The European economy went through a decline from the mid 14th and mid 15th century. Plague and wars led to depopulation in many parts of Europe. Trade grew slack, and there was a shortage of gold and silver used for making European coins. This situation was in stark contrast to the preceding period from the 11th to mid 14th centuries, when growing trade had supported Italian city states and led to the accumulation of capital. In the late 14th century, long distance trade declined and then became difficult after the Turks conquered Constantinople in 1453. Italians managed to do business with Turks but were now required to pay higher taxes on trade. 14th सेंचुरी के मध्य और 15वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की अर्थव्यवस्था गिरावट के दौर से गुजर रही थी। प्लेग और युद्धों ने यूरोप के अनेक भागों में आबादी को उजाड़ दिया। व्यापार में मंदी आती गई और वहाँ सोने तथा चांदी की कमी आ गई, जो कि उन दिनों यूरोप में सिक्के बनाने के काम आती थी। ये स्थिति इससे पहले 11वीं सदी के मध्य और 14वीं शताब्दी तक की उस स्थिति से बिल्कुल ही उलट थी, जब बढ़ते हुए व्यापार ने इटली के नगर राज्यों को समृद्ध बना दिया था और उसके चलते पूंजी संचय भी हुआ था। लेकिन 14th सेंचुरी के बाद के दशकों में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आ गई और 1453 में तुर्कों द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय के बाद तो वह और भी मुश्किल हो गया। इटली वासियों ने किसी तरह तुर्कों के साथ व्यवसाय करने का इंतज़ाम तो कर लिया, पर अब उन्हें व्यापार पर अधिक कर देना पड़ता था। The possibility that many more people could be brought into fold of Christianity made many devout Christian Europeans ready to face adventure. बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप के धर्मपरायण ईसाइयों को इन साहसिक कार्यों के लिए प्रेरित किया। As it happened, the Crusades against the Turks began as a religious war, but they increased Europe's trade with Asia and created a taste for the products of Asia, especially spices. If trade could be followed by political control, with European countries establishing
establishing colonies in regions with a warmer climate they would benefit further. ये तो सभी जानते हैं कि तुर्कों के विरुद्ध क्रूसेड्स यूँ तो धार्मिक युद्ध के रूप में शुरू हुए थे, पर इन्होंने एशिया के साथ यूरोप के व्यापार में वृद्धि की और एशिया के उत्पादों विशेषकर मसालों के प्रति भी यूरोवासियों की रुचि बढ़ाई। यूरोवासियों को ऐसा लगा कि यदि व्यापार के साथ साथ पॉलिटिकल कंट्रोल भी स्थापित हो पाए तो यूरोपीय देश वार्मर क्लाइमेट वाले स्थानों पर कॉलोनी स्थापित कर पाए तो उन्हें अधिक लाभ होगा। When thinking of new regions where gold and spices might be found, one possibility was West Africa, where Europeans had not traded directly so far. Portugal, a small country which had gained independence from Spain since 1139 and which had developed fishing and sailing skills, took the lead. Prince Henry of Portugal called the navigator, organized the coasting of West Africa and attacked Ceuta in 1415. After that, more expeditions were organized and the Portuguese established a trading station in Cape Bozador in Africa. Africans were captured and enslaved and gold dust yielded the precious metal. जब यूरोवासी सोने और मसालों की खोज में नए नए प्रदेशों में जाने की बात सोचने लगे और तो उन्हें वेस्टर्न अफ्रीका का ध्यान आया, जहां उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अब तक किसी तरह का व्यापार नहीं किया था। एक छोटा सा देश पुर्तगाल जो 1139 में स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र रूप से स्थापित हो चुका था और फिशिंग और सेलिंग के क्षेत्र में उसने विशेष कुशलता प्राप्त कर ली थी, ने इस दिशा में पहल की। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जो कि नेविगेटर के नाम से मशहूर था, ने वेस्टर्न अफ्रीका की तटीय यात्रा आयोजित की और 1415 में सियूटा पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद कई अभियान आयोजित किए गए और अफ्रीका के बोजाडोर अंतरीप में पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। अफ्रीकियों को पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाया जाने लगा और गोल्ड डस्ट यानी स्वर्ण धूलि को साफ करके सोना तैयार किया जाने लगा। In Spain, economic reasons encouraged individuals to become knights of the ocean. The memory of the Crusades and the success of Reconquista fanned private ambitions and gave rise to contracts known as capitulación. Under these contracts, the Spanish rulers claimed rights over sovereignty over new conquered territories and gave rewards to leaders of expedition in forms of titles and right to govern the conquered lands. स्पेन में आर्थिक कारणों ने लोगों को नाइट्स ऑफ द ओशन बनने के लिए प्रोत्साहित किया। क्रूसेड्स की याद और रिकाक्वेस्टा की सफलता ने प्राइवेट एम्बिशंस को उत्तेजित कर दिया और उन कॉन्ट्रैक्ट्स की शुरुआत की जिन्हें कैपिटुलेसियोन कहा जाता था। इन कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत स्पेन का शासक नए जीते हुए इलाकों पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेता था और उन्हें जीतने वाले अभियानों के नेताओं को पुरस्कार के रूप में पदवियां और जीते गए प्रदेशों पर शासनाधिकार देता था। अगला पार्ट